Welcome back students to our video lecture series of geotechnical engineering, and we are going to continue our chapter compaction. In the last lecture we had seen about the standard Proctor test. So today we are going to start a new laboratory compaction test method, which is a modified Proctor test. So let's start without wasting any time. So here is the overview of the modified Proctor test. Modified Proctor test was developed during the World War II by the US Army Corps of Engineering for the better representation of the compaction required for the airfield to support heavy aircraft. So generally I already told about this compaction methods during the compaction theory, that in the case of road and airways, roadways and airways, we are using a heavy modified Proctor test, right? So at that time we are not going to interpolate the readings of the compaction and modify Proctor test for the same purpose, because for heavy loading we already opt this modify Proctor. ठीक है, अब जो भी हैवी लोड्स आएंगे वहाँ पे हम मॉडिफाई इन शॉर्ट मॉडिफाई Proctor टेस्ट परफॉर्म करेंगे. अब सेम एज द स्टैंडर्ड Proctor टेस्ट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शनल्स. जितने भी प्रोसीजर है मैंने आपको पहले बताया था, आपने मीटिंग में की अंदर भी, कि जो मॉडिफाई Proctor टेस्ट है उसके अंदर जो भी प्रोसीजर है वो सेम रहती है स्टैंडर्ड Proctor टेस्ट जैसी, बट कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है. जैसे कि द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड इन 5 लेयर. ठीक है, मॉडिफाई Proctor में हम 5 लेयर में सॉइल को फिलअप करेंगे, जबकि स्टैंडर्ड में हम लोग 3 लेयर के अंदर फिलअप करते थे. प्लस टू प्लस द हैमर वेट इज 10 lbs और 4.54 kg. मतलब उसके अंदर हम 2.5 kg का हैमर लेते थे, यहाँ पे हम 4.5 kg का हैमर लेंगे. ड्रॉप हाइट इज 45.72 सेंटीमीटर. हैमर का हाइट जो ड्रॉप होगा वो 45 सेंटीमीटर रखेंगे, उसमें 30 सेंटीमीटर था. एंड देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैलकुलेटेड. तो ये है प्रोसीजर उसकी. बाकी का जो प्रोसीजर रहता था वो सब सेम है. यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये हैमर है आपका 4.5 kg का, ये आपकी हाइट है 45 सेंटीमीटर जितनी. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लोज ओवर द सरफेस, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड Proctor टेस्ट में करते थे वैसे इसके अंदर करना है. ठीक है, एक एक गोल ऐसे करते जाना, बीच में करना है ऐसा हैमरिंग. ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेंगे इस ब्लोज को हमें. Now the specification of standard Proctor test based on the ASTM test design 698. The item, the diameter of mold for the first method it is 101.6 mm. The volume of mold is 943.3 centimeter cube. Weight of hammer is 4.5 kg or 44.5 Newton. Height of hammer drop is 45 centimeter. The number of hammer blows per layer is 25. The number of layer of compaction is total 5 layer we have to fill the mold. ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लोज थे वो 25 के 25 से रहने वाले इसके अंदर. The energy of compaction release will be 2696 kilonewton per मीटर स्क्वायर. क्लियर, ये है उसके क्राइटेरिया. जनरली जो मॉडिफाइड Proctor टेस्ट होता है उसमें दूसरा भी एक टेस्ट होता है जिसमें डायमीटर वगैरह चेंज हो जाता है, मोल्ड थोड़ा बड़ा रहता है. ठीक है, तो उसके स्पेसिफिकेशन आपको लास्ट में सी मेथड में दिख रहा है. ठीक है, मोल्ड भी चेंज हो जाएगा, हैमर का वेट भी चेंज हो जाएगा, लेयर्स भी चेंज हो जाएंगे. जो डायमीटर ऑफ मोल्ड है वो 154 हो जाएगा, पहले 100 mm था अब 150 mm हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 2124 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. वेट ऑफ हैमर तो सेम ही है हमारे पास 4.5 kg का. हाइट ऑफ हैमर ड्रॉप भी सेम रहेगा, सेम हैमर यूज कर रहे इसके कारण 45 सेंटीमीटर जितना. और नंबर ऑफ लेयर पर ब्लो चेंज हो जाएंगे, जो पहले 25 थे और 56 होने वाले, और जो नंबर ऑफ लेयर सेम 5 ब्लोज रहेंगे. क्लियर. नाउ specification of standard Proctor test based on the ASTM test designation is 698. Which type of soil we can use? So there are 3 methods again. In first method, proportion passing number sieve
4.75 mm sieve may be used if 25% or less by weight of material is retained on the number 4 sieve. If this gradation required cannot be met, the method B or C may be used. In method B, a portion passing 9.5 mm sieve may be used if soil retained on number 4 sieve is more than 25% and 25% or less by weight of material is retained on 9.5 mm sieve. मतलब जो पहली मेथड थी जिसके अंदर हम 4.75 mm की सीव लेते थे, नंबर 4 वाली सीव, उसके हमने क्या लिखा है कि लेस देन 25% पास होना चाहिए. अगर लेस देन 25% से ज़्यादा सैंपल पास हो गया 4.75 mm सीव में से, तो हमें 9.5 mm वाली सीव यूज़ करनी. क्लियर? और वो मेथड बी में आएगा. उसमें क्या करना है, हमें 9.5 mm वाली सीव यूज़ करना है और उसमें से पासिंग नंबर ऑफ रख. अब बात करते हैं हम लोग मेथड सी के बारे में. Now, a portion passing 19 mm sieve may be used if more than 20% by weight of material is retained on 9.5 mm sieve and less than 30% by weight of material is retained on 19 mm sieve. So, मेथड सी कब यूज़ करनी है हमें कि 30% से जो भी मटेरियल कम है वो सिर्फ 9.5 mm sieve पे रिटेन करेगा, 20% जितना. ठीक है, 20% से जो भी ज़्यादा होगा मटेरियल वो 9.5 mm में रिटेन करेगा और बाकी का पास हो जाएगा. और दूसरा क्राइटेरिया है 30% जितना मटेरियल 19 mm के अंदर सीव के अंदर रिटेन करेगा. रिटेन मतलब रह जाएगा. ठीक है, पास मतलब उसमें से निकल जाना बाहर. तो तब हम उसमें मेथड सी को एलिमिनेट करेंगे यूज. क्लियर? नाउ अ कॉम्पेक्शन कर्व. सो कॉम्पेक्शन कर्व के बारे में आपको पता ही है, वाटर कंटेंट वर्सेस ड्राई डेंसिटी का प्लॉट रहता है. अब स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का कर्वेचर आपको दिख रहा होगा. ये नीचे रेड कलर की लाइन है वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की है और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की. दोनों के डिफरेंस आपको पता चल ही रहे होंगे. डेंसिटी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में ज़्यादा अचीव होती है बट वाटर कंटेंट कम अचीव होता है, जबकि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में ज़्यादा वाटर कंटेंट अचीव होता है और कम ड्राई डेंसिटी अचीव होती है एज कम्पेयर टू मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. नाउ अ बेसिक कंपैरिजन समरी बिटवीन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट. सो बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट तो हमारा मोल्ड का साइज है वो सेम रहेगा. ठीक है, अगर मेथड सी यूज़ करेंगे तभी चेंज होगा. 150 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर मेथड सी यूज़ करेंगे तो. बाकी जो फर्स्ट मेथड है दोनों में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर की भी 943.3 सेंटीमीटर क्यूब है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर भी सेम 944.3 सेंटीमीटर क्यूब. इसके अंदर जो हैमर का ड्रॉप रहता है 304.8 mm जितना रहता है और ये जो हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ हैमर है मॉडिफाई के अंदर वो 457.2 mm रहता है. नाउ एंड यहाँ पे जो लेयर है वो तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में आपको पता ही है 3 लेयर में हम लोग 25 ब्लोज अप्लाई करते थे और यहाँ पे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में उससे अलग थोड़ा है, डिफरेंट है. 5 लेयर में हमें 25 ब्लोज अप्लाई करने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज दोनों में सेम रहेंगे पर लेयर. एक लेयर हमें ऐड करना है उसके अंदर और उसके ऊपर हमें 25 ब्लोज अप्लाई करने हैं. सेम पैटर्न में मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में रहेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस नंबर ऑफ लेयर 3 है, दूसरे में मॉडिफाई में नंबर ऑफ लेयर 5 रहेंगे. अब ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर 5 है और नंबर ऑफ ब्लोज उसके बढ़ जाएंगे, कम्युलेटिव नंबर ऑफ ब्लोज बढ़ जाएंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में टोटल 75 ब्लोज लगने वाले कॉम्पेक्शन के अंदर, यहाँ पे 125 ब्लोज लगने वाले कॉम्पेक्शन के अंदर. ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी चेंज दिखेगी आपको. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट रहेगा उसके अंदर हम एनर्जी प्रोड्यूस होती है 491.3 किलोडम पर मीटर स्क्वायर, जबकि यहाँ पे मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 2696 किलोडम पर मीटर स्क्वायर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो ये था हमारा स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का डिफरेंस. नाउ लेट्स चेक द फाइल्ड कॉम्पेक्शन. राइट, फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट. What do you mean by it? Most of the compaction in the field is done with the roller. The 4 most common type of roller are
smooth wheel roller or a smooth drum roller. Another one is pneumatic rubber tire roller. Third one is seafood roller, and fourth one is vibratory rollers. Let's take a look for the first one, smooth wheel rollers. Smooth wheel rollers are suitable for proof rolling, subgrade and for finishing operations of fields with sandy and clayey soils. These rollers provide 100% coverage under the wheels with ground contact pressure as high as 310 to 380 kN per meter square. They are not suitable for producing high unit weight of compaction when used in thicker layer. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये स्मूथ व्हील रोलर है वो सैंडी और क्लेई सॉइल के अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं, और जो टोटल सॉइल होती है उसका व्हील का और सॉइल का टोटल कवरेज हो जाता है 100% जितना। ठीक है, यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रेशर अचीव कर सकते हैं 310 से लेके 380 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितना। बट यहाँ पे ये जो स्मूथ व्हील रोलर रहेगा वो ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा कॉम्पेक्शन अचीव करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते इन द केस ऑफ थिकर लेयर, जो जहाँ पे थिकनेस ऑफ जो लेयर होगी सॉइल की वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसको। यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ व्हील जो रोलर है उसकी फिगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। वन स्टील ड्रम एंड रबर टायर ड्राइव व्हील्स। फर्स्ट यहाँ पे स्मूथ जो व्हील रोलर है पहला जो होगा वो स्टील का ड्रम होगा यहाँ पे, और जो उसको ड्राइव करेंगे वो न्यूमेटिक रबर टायर होंगे व्हील्स। क्लियर? टू स्टील ड्रम्स, one of which is the driver, effective for gravel, sand, silt and soils. ठीक है, अगर टू स्टील ड्रम है यहाँ पे तो उसमें से दो में से एक जो होगा वो ड्राइवर होगा, दूसरा फ्री मूव करने वाला है। ठीक है, जो ड्राइवर होगा उसकी डायरेक्शन में। ये ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे रहता है, जो ग्रेवल होगी, सैंड हो गई, सिल्ट और सॉइल जैसी मटेरियल है अर्थ का, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बेटर यूजफुल रहने वाला है। अब बात करते हैं हम लोग pneumatic rubber tire roller की। A pneumatic rubber tire roller are better in many respect than the smooth wheel roller. The former and heavily loaded wheel several rows of tires. These tires are closely placed 4 to 6 in a row. Pneumatic roller can be used for sandy and clayey soil compaction. Compaction is achieved by combination of pressure and kneading action. काफ़ी केस में ये प्नूमेटिक रबर टायर हमें स्मूथ व्हील रोलर से ज़्यादा बेटर रीडिंग्स देते हैं, जनरली इन द केस ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। ठीक है, यहाँ पे 4 से 5 जो रबर के टायर होते हैं वो ग्रुप में रो में लगाए हुए होते हैं, एक के साथ एक के बाजू में एक। ठीक है, एकदम लेस स्पेसिंग के साथ रखे होते हैं। ये कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं? बाय द प्रेशर और नीडिंग एक्शन से कॉम्पैक्शन अचीव कर लेते हैं। उसकी फिगर देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो प्नूमेटिक रबर टायर रोलर। ठीक है, ये एकदम नज़दीक में क्लोज ग्रुप में 5 टायर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 टोटल प्नूमेटिक टायर है जो एकदम क्लोज स्पेसिंग के साथ रखे, और पूरा का पूरा प्रेशर यहाँ पे रोड पे हम अप्लाई कर रहे हैं बाय नीडिंग एक्शन। अब बात करते हैं स्विफ्ट फुट रोलर की। सो द स्विफ्ट फुट रोलर्स आर drums with a large number of projections. Swift foot rollers. In this swift foot rollers are drums with a large number of projections. The area of each projections may range from 25 to 85 centimeters square. These rollers are most effective in compacting clayey soils, especially. The contact pressure under the projection can range from 1400 to 7000 kilonewton per meter square. सो जिस स्विफ्ट फुट रोलर है उसके अंदर नॉर्मल जो रोलर ड्रम होता है उसके अंदर हम लोग प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब टीथ जैसा आपको अंदर दिखेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में टीथ ऐसे ड्रम के बाहर प्रोजेक्ट किए हो ना, ऐसे दिखता है उसके अंदर। और हर एक के प्रोजेक्शन की जो साइज़ रहती है, रेंज होती है, वो 25 to 85 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में रहती है। ठीक है, जनरली स्विफ्ट फुट रोलर हम लोग क्लेई सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं,
और इसका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर रहता है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 1400 से 7000 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर जितना रहता है। अब आप इसकी फिगर देखोगे आपको ज़्यादा उसके अंदर आइडिया आएगा। ओके, सो दिस इज योर प्रोजेक्शंस। जो नॉर्मल हमारा ड्रम रहता है मेटालिक, उसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस दिए होते हैं। क्ले सॉइल के अंदर क्या है, ये जो टीथ होते हैं वो क्ले सॉइल के अंदर होती है ना, सॉफ्ट होती है, तो उसके अंदर धस जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी आता है आपको पता है कि क्ले के अंदर जो कंसोलिडेशन होगा उसके अंदर एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर प्रेशर के कारण कंसोलिडेशन होता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब कंसोलिडेशन होता है तो उसको जगह चाहिए पानी को फिलअप रहने के लिए। तो ये जितने भी खड्डे बन जाएंगे उसको पानी से फिलअप हो जाएंगे। फिर अगेन हम लोग ये रोलर घुमाएंगे दूसरी जगह पे, तो ऐसे क्या होता है कि पोर वाटर प्रेशर रिलीज होता है, तो अपनी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है उससे। फिर चाहे तो हम उसके ऊपर नॉर्मल रोलर भी घुमा सकते हैं। So during this compaction in the field, the initial passes compact the lower portion of a lift. A compaction at the top and middle of a lift is done at a large state. Okay. Another figure you can see here. This is your 6-foot roller. नॉर्मल ब्लेड के अंदर आपको टीथ मिल जाएंगे देखने के लिए। अनदर वन इज द वाइब्रेटर रोलर। So in the vibratory rollers, rollers are extremely efficient in the compacting granular soils. Vibrators can be attached to smooth wheels, a pneumatic rubber tire, or 6-foot rollers to provide a vibratory effect to the soil. The vibrator is produced by the rotating off-center weight. ओके, सो ये जो वाइब्रेटर होते हैं वो नॉर्मल रोलर के अंदर या फिर प्नूमेटिक रोलर के अंदर या फिर हम 6-फुट रोलर के अंदर अटैच कर देते हैं। तो जब रोलर अपना काम कर रहा होगा तो वाइब्रेटर भी साथ साथ में अपना काम कर रहा होगा, तो जिसके कारण क्या होता है, सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आती है वहाँ पे, डायनेमिक रेंज जैसी इफेक्ट रहेगी वाइब्रेटर्स की। तो उसके कारण सॉइल के अंदर आपको वाइब्रेशन के कारण कॉम्पेक्शन अचीव हो जाएगा ग्रेन्यूलर सॉइल, स्पेशली इन ग्रेन्यूलर सॉइल। क्लेई सॉइल में इसकी कोई इफेक्ट नहीं रहने वाली वाइब्रेशंस की। जनरली फॉर ग्रेवल्स और जो ग्रेन्यूलर सॉइल होती है सैंडी सॉइल टाइप, उसके अंदर हमें काफ़ी इफेक्टिव रीडिंग्स देने वाला है। तो ये सब थे इक्विपमेंट हमारे कॉम्पेक्शन अचीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फील्ड कॉम्पेक्शन के बारे में। व्हाट डू मीन बाय इट? For field compaction, soil is spread in a layer and a predetermined amount of water is sprayed on each layer of soil, after which compaction is initiated by a desired roller. In addition to soil type and the moisture content, other factors must be considered to achieve the desired unit weight of compaction in the field. तो यहाँ पे जो बात करी है वो आपने हम लोगों ने लास्ट टाइम मीटिंग के अंदर भी की थी कि फील्ड के ऊपर कैसे कॉम्पेक्शन अचीव करेंगे। ये तो हम लेबोरेटरी की तो मेथड देख ली, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, मॉडिफाई प्रॉक्टर, राइट। फील्ड पे क्या करते हैं, तो जनरली फील्ड पे ऊपर हम लोग रोलर्स का यूज़ करते हैं, वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, या फिर हैमर्स के यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के हैमर आते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम लेयर वाइज उसका रोलर की बात करूँ मैं, अगर तो लेयर वाइज हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले OMCMD डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मॉडिफाइड प्रॉक्टर से परफॉर्म करके हमको OMCMD मिल जाएगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी फील्ड के ऊपर क्या करना है कि जो उसका लेयर है उसके ऊपर हमें स्प्रे कर देना है, स्प्रिंकल कर देना है। जो भी पानी OM से आ रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, उतना वाटर हमको स्प्रे आउट कर देना है, फिर उसके ऊपर रोलर घुमाना है। अगेन दूसरा लेयर करेंगे, दूसरे लेयर के अंदर सेम वाटर स्प्रिंकल करेंगे, वापस रोलर घुमाएंगे उसके ऊपर। अब रोलर का क्या रहता है कि वेट फिक्स रहता है, तो जनरली कॉम्पैक्शन इफेक्ट हम डेंसिटी कैसे अचीव करेंगे उसके अंदर, बल्क डेंसिटी को, कि नंबर ऑफ पासिंग, रोलर का जो नंबर ऑफ पासिंग रहेगा उससे हमें पता चलेगा। क्लियर? तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेन की है। These factors include the thickness of lift, the intensity of pressure applied by the compacting equipment, and the area over which the pressure is applied. These factors are important because the pressure applied at the surface decreases with the depth.
विच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ सॉइल कॉम्पेक्शन। तो बहुत सही बात यहाँ पे बताई है कि ये जो फैक्टर है वो जनरली थिकनेस ऑफ लीफ, मतलब जो लेयर है सॉइल का लेयर जो हम लोग कॉम्पैक्ट करने वाले उसकी थिकनेस के ऊपर आधारित रहता है। तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, मतलब कितने इंटेंसिटी से हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, किस किस्म के इक्विपमेंट से कर रहे हैं, और वो एरिया कैसा है, एरिया का टाइप कैसा है, ये हर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल का कॉम्पैक्शन। दिस फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रेशर अप्लाइड द सरफेस डिक्रीज विद द डेप्थ। मतलब कि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे जो नीचे का लेयर होगा उसके ऊपर प्रेशर बहुत कम आने वाला है, जो रोलर के कांटेक्ट में होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये सब बाकी के जो फैक्टर है वो हमें बहुत ध्यान में रखने, थिकनेस रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड, एरिया रिलेटेड, जो भी हमने आगे फैक्टर देखे वो क्लियर। Now next is during compaction, the dry unit weight of soil also is affected by the number of roller passes. The dry unit weight of soil at a given moisture content increased to a certain point with the number of roller passes. मतलब ये एक सिंपल चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वाटर डालेंगे तभी कॉम्पेक्शन होगा। ऑब्वियसली जो ड्राई यूनिट वेट होता है सॉइल का, ड्राई सॉइल होगी, अगर हमने तभी भी रोलर को घुमाया तो भी हमें थोड़ी बहुत डेंसिटी तो अचीव होने ही वाली है, ठीक है। बट ज़्यादा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कब अचीव हो जाएगी जब उसके ऊपर पानी का स्प्रिंकल करेंगे। तो प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट के अंदर वही ड्राई सॉइल जो हमने पहले कॉम्पैक्ट की थी वो कुछ अमाउंट ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी फैक्टर अफेक्टिंग यहाँ तक कि ध्यान में रखने फैक्टर्स आपने देख लिया आगे, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर, देन कंस्ट्रक्शन इक्विप मतलब कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट, एंड कौन सा एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमको प्रेशर अप्लाई करना है ऐसा कौन सा एरिया है, इतने फैक्टर्स उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए फैक्टर अफेक्टिंग तक ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।